शौहर ने अपनी बीवी को मुबैना तौर पर कत्ल करके लाश बोरी में डालकर फेंक दी। बोरी ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ झाड़ियों में फेंका हुआ था ऑफ द रोड। ਆਪ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਾਂਦੀ ਏ। मोहम्मद अली, ये बताइएगा कि क्या टाइम था, क्या दिन था और किस तरह मकतूला को किसने कत्ल किया? ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀ, 17 ਤਰੀਕ ਸੀ ਤੇ 11:03 ਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਫੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਤੇ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। ਬਸ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਸ ਗਲਤ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਨੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ। 2 ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 4 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਮਝੋ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਇਹਨੇ ਫੁੱਲ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2-3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪੈਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ? ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਤੇ ਭਣੋਈਏ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਰਾਵੀ ਰੋਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਦੋਨੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਉਤੋਂ ਭਣੋਈਆ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਉੱਧਰੋਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨੂੰ करता। हमारे साथ मकतूला की बड़ी बेटी महानूर भी मौजूद है और इससे जानते हैं कि उस रोज़ क्या हुआ था। क्या ये घर पर मौजूद थी जब इसकी वालिदा को इसके वालिद ने कत्ल किया? महानूर, आप उस वक्त घर पे थी जब ये सारा वाक़या पेश आया? सुबह 7:30 बजे हम स्कूल गए हुए थे। हमें मम्मा उठ गया, मम्मा ने हमें उठाया, मम्मा ने हमें तैयार शेयर किया, खाना खिलाया। तो पापा ने दूध दिया मम्मा को। तो मम्मा ने दूध पिया तो मम्मा ना गिरने लग गई थी, मम्मा को चक्कर आने लग गए थे। तो मम्मा कहती चलो आओ बच्चों मैं तुम लोगों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। तो पापा कहता नहीं मैं छोड़ने जाता हूँ बच्चों को स्कूल, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक लग रही। तो मम्मा कहती नहीं मैं छोड़ने जाती हूँ। तो फिर भी पापा छोड़ने गया था। हम स्कूल रास्ते में 2 या 3 मरतबा फ़ोन आया मगर पापा ने हमें नहीं उठाया। अच्छा, ये बताओ कि वैसे स्कूल कौन छोड़ने जाता था? हाँ, वो मम्मा छोड़ने जाती थी मगर उस दिन पापा छोड़ने गया था। पापा उस दिन पहली दफ़ा छोड़ने के लिए गया था स्कूल? जी। और वापस आप कितने बजे घर आई हो? वापस हम 12 बजे आए सीधा। खुद ही आते थे कि कोई लेके आता? नहीं, खुद ही आते थे हम दोनों बहन भाई। तो हम सुबह 12 बजे आए हैं स्कूल से सीधा घर। तो लोग था घर, तो हमने सामने से पूछा तो वो कहते हैं आपका पापा 11 बजे आए थे। तो उन्होंने ना अपना सामान वगैरह लेके चले गए थे वो। तो फिर हम खाला के घर गए तो खाला हमने कहा खाला मम्मा पापा नहीं है घर, कहाँ गए हैं? तो मम्मा खाला कहती मम्मा पापा आ जाएंगे, आप चलो खाना खाओ और मदरसे पढ़ने जाओ। फिर आप मदरसे चले गए? जी, उसके बाद ट्यूशन चले गए। तो रात को 24 घंटे हो गए थे। तो फिर मेरे छोटे मामू ने बड़े मामू को फ़ोन किया। मामू उस वक्त पिंडी थे। तो बड़े मामू ने कहा आप रावी रोड दरख्वास्त लिखवाएँ। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो और भाई आपका कौन सी क्लास में पढ़ता है? मैं 4th क्लास पे पढ़ती हूँ और जो सा मेरा भाई है वो नर्सरी क्लास में पढ़ता है। अच्छा,
जी तो आपके सामने पापा मारते थे मम्मा को कोई? मारते थे, बहुत मरतबा लड़ाई हुई और लास्ट वार्निंग मामू वगैरह सुलह करवा देते थे, थाने वगैरह भी आए तो फिर भी सुलह सफाई हो जाती थी, तो उसके बाद ये चौथी मरतबा तो थी। कभी आप लोगों ने नहीं कहा पापा को कि क्यों लड़ते हैं, क्यों मारते हैं मामा को? है तो नहीं, वो मानते थे, वो कुछ भी नहीं ला के देते थे घर में। मुझे भी एक दिन पहले मारा है। आपको किस बात पे मारा? मैं मम्मा से वो पापा को कह रही थी पापा ना मारा करो, तो मम्मा मुझे स्कूल ट्यूशन छोड़ के आओ। मम्मा हमें स्कूल ट्यूशन छोड़ने जाती थी, मदरसे वगैरह भी छोड़ने जाती थी, तो पापा मुझे ना अचानक से झिड़कने लग गए। ज़ीशान साहब बताइएगा कि मुलजिम ने किस तरह मकतूला को कत्ल किया, फिर बोरी में लाश बंद की और किस जगह पर इसने जाकर फेंका, पुलिस को ये सारा कैसे पता चला और लाश कैसे पुलिस को मिली, फिर किस तरह पुलिस मुलजिम तक पहुंची? मामला है 17/10/2025 का, जब एक 15 कॉल पुलिस को रिसीव होती है कि रिंग रोड इलाका थाना रावी रोड पे एक बोरीबंद लाश जो है वो पड़ी हुई है। हमने जब वहाँ मौका मुलाजा किया और जाके ये देखा कि एक बोरी थी जिसके ऊपर 2 चादरें लिपटी हुई थी और उसको एक झाड़ियों में फेंका हुआ था ऑफ द रोड। उसी वक्त एक टीम कॉन्स्टिट्यूट कर दी जिस पर हमने अपने काम में आगाज़ कर दिया और वहाँ पर मौका पर फ्रांसिक टीमें जो थी उनको तलब किया गया और मौका से शवाहद इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। मुलजिम फ़रार कहाँ हो गया था, उसको कैसे गिरफ़्तार किया, फिर मकतूला को मारा किस तरह, कोई गला दबाया गया, कोई तेज़धार आले का इस्तेमाल किया गया? पहले तो हमारा तो यही था कि डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया जाए। आइडेंटिफाई किए जाने के बाद अगला टास्क हमारा ये था कि ये कत्ल क्यों हुई और किसने की और किस तरह से की है। उसके ऊपर हमने फोकस करते हुए इसके शौहर की तलाश शुरू की कि आया कि वो भी मिसिंग है या उसने कोई और काम किया हो, उसका नंबर बिल्कुल बंद था। और जब हमें हालात वाक़यात का पता चलना शुरू हुआ कि आए दिन लड़ाई झगड़े और ये चीज़ें चलती थी, तो ये हमारा प्राइम सस्पेक्ट बन चुका हुआ था, जिसके तलाश के लिए हम लोगों ने टीमें बना के तो रवाना कर दी गई। 72 घंटे के अंदर अंदर हमने इसको गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद जो इसने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया, इसने रूटीन में ये बात की जी कि मुझे उस पर बात चलने का शुबा था, जो कि मैं कबल अज़ीब भी उसको मना करता रहता था और वो बाज़ नहीं आती थी, तो अब मेरा बर्दाश्त जो थी वो ज़्यादा हो चुकी हुई थी, तो इसलिए मैंने इसको इसके गले में कपड़ा डाल के तो इसको मैंने कत्ल कर दिया, जो मुलजिम ने मौक़िफ़ अपना दिया था। अच्छा, ये सब कुछ इसने अकेले ने किया? जब ये लड़ाई झगड़ा और मामलात हुए और उसके दौरान इसने इसको मर्डर कर दिया, तो फिर इसने उसमें वहाँ पे घर में ही मौजूद एक पॉलीथीन का, एक नायलॉन का एक थैला जो था उसके अंदर उसको डाला और फिर वही उसी बेड की जो एक बेड शीट थी उसमें लपेटा और एक बेड शीट जो है दूसरी निकाली अलमारी में से, उसके ऊपर उसको डाला। डालने के बाद फिर ये घसीटता हुआ उसको, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, नीचे ले गया। नीचे ले जाके तो इसने पहले से ही बाइक एक जो खड़ी की हुई थी उस बाइक के ऊपर उसको डालकर तो ये लेके इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए वहाँ से रवाना हो गया।